Hello guys, welcome to Raksha Academy. So this is your educator Mr. Joshikar Sharma Chaudhary, and today we are going to discuss about the next lecture topic, that is that this is the intro section of our syllabus and how we can proceed in this topic in this paper in our upcoming lecture. So finally we are going to start paper 3, which is a science and tech part, and according to the syllabus of MPPSC mains. So in this we are going to start unit 1, which is a unit of physics, and this unit covers 30 marks. सबको पता है marks distribution, every unit covers a 30 marks. So that means it is very much clear that 30 marks का इस unit से आने ही वाला है हमारे एग्जाम में. So that means हमको 30 marks इतने strong करने हैं so that we can score as much as you can. The first topic according to the syllabus of unit 1 is work power energy. Subtopics is gravitational force, friction, atmospheric pressure and work. So let us take an example that how we can proceed in our upcoming lectures. The first thing that you have to understand, then what do you mean by work? The work definition in our daily life is very much different than in the physics world. If we're talking about the work done in our daily life, that somebody was preparing for government exams and doing very work hard for the examination by reading different kinds of books and by making notes and by doing the test series and finally at the end revision. But at the end of the day, if we are saying that we are doing a very working hard, we working hard for the examination, but in terms of physics the net work done by his or her is zero. Why this is zero? This we have to understand by learning the definition of work and to understand the proper definition of work in the physics world. If we talk about the definition in physics of work, so let us understand by taking the image that this let us understand this object A, and if we applying a force on this object, that there is a displacement occur by the object A S, मतलब ये अपनी जगह से move कर गया, then we have to say the work is done on the object. ठीक है, वर्क डन हो रहा है बाय अप्लाइंग द फोर्स, हमने अगर उसको पुश किया और वो मूव हो गया, देन इट इज सेड टू बी अ वर्क डन. दैट मीन्स जो फॉर्मूला है फिजिक्स में वर्क डन का इज F into S, where F is force, S is displacement, and the unit of work done is न्यूटन मीटर और जूल. क्या है? न्यूटन मीटर और जूल. क्लियर? और डायग्राम ये हो गया. सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टोर इन योर माइंड, दैट इफ यू आर राइटिंग एनी आंसर इन साइंस, that you have to follow this keyword. The first thing is in your mind that you have to write the definition of that topic, that जो भी कोई क्वेश्चन पूछा है, for example what do you mean by work, then you have to write the definition of work. Then what is the definition of work? तो वर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए वर्क की, तो जिससे आप एग्जाम में लिख पाओ. आप सबको पता होता है कि वर्क का जो वर्क है वो काम करना होता है. तो डेफिनेशन क्या होती है वर्क की? वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स causes a displacement of the object. So this is the definition. ये हम पढ़ेंगे जब वक्त पढ़ेंगे, और यूनिट हो गई न्यूटन मीटर एंड जूल. डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो ऑब्जेक्ट के, और एग्जांपल आप क्या दे सकते हो कि इफ देयर इज अ गर्ल, वो जो जाती है मॉल में, उसने अपनी ट्रॉली निकाली जिसमें उसे सामान कलेक्ट करना है, तो ये रही, एंड इसने इसको फोर्स लगाया एंड ये अब मूव कर रहा है, ये मूव कर गया, इसको फोर्स लगाया एंड ये डिस्प्लेसमेंट कर गया, तो ये भी क्या एक वर्क डन कर रही है. Then come forward to the subtopics. If we are talking subtopics, that is a gravitational, फिर हम पावर पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ने के बाद सब टॉपिक्स पे आएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी. इफ वी आस्क the exam, if the examiner ask you for 3 marks, तो आपको ग्रेविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, which is F equal to G m1 m2 upon r square.
where you have to mention that f is what is f, what is g, what is m1 सिग्निफाई क्या कर रहा है, m2 क्या सिग्निफाई कर रहा है, r क्या सिग्निफाई कर रहा है। देन हम पढ़ेंगे फिर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एक सिंपल एग्जांपल है, इफ यू वांट टू वॉक ऑन बनाना यू विल स्लिप। व्हाई यू विल स्लिप? दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण आप स्लिप हो जाओगे। तो और हमेशा जो फ्रिक्शन है अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को, अपोजिस applied force. If the force is in this direction then friction is in this direction. Then हम वो atmospheric pressure and work पढ़ेंगे। Then move forward to the next topic of this unit is unit and measurement। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे मैट्रिक सिस्टम, फिर आप एक और सिस्टम होता है यूएस सिस्टम, दैट इज इंच फुट यार्ड वाला, वो वाला सिस्टम भी पढ़ोगे और एग्जाम्पल्स हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम आर डेली लाइफ। देन मूव फॉरवर्ड टू द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एवरीवन वाज फेमिलियर विद द स्पीड, सबको पता है फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। देन हम वेलोसिटी का ही पता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी? How can they differ from each other? The main difference is that speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके कारण फिर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाई द स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाई द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो आप डेफिनेशन पढ़ लोगे स्केलर और वेक्टर की तो आप समझ पाओगे कि ये दोनों क्यों स्केलर और वेक्टर है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। देन हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ साउंड, जहां पर आप क्या पढ़ोगे साउंड के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड क्या होता है? तो साउंड सबको पता है कि साउंड क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हर्ड एंड ट्रेवल इन वेव्स। ठीक है, इस तरीके डेफिनेशन आप लिख सकते हो 3 मार्क्स की। देन मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन की अगर बात आएगी तो आप मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन में डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फिर आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, इसके बारे में भी आप फिगर्स के साथ चीज़ों पढ़ने का ट्राई करोगे और एग्जाम्पल भी अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप वहाँ पे लिखने का ट्राई करोगे फॉर टू मेक योर आंसर वेरी इंप्रेसिव। देन हम आ जाएंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड पे, जहाँ पर ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो आप इजीली सुन पाते हो, इनऑडिबल होते हैं जो आप सुन नहीं पाते हो। ऑडिबल साउंड्स की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और डिफरेंस भी पढ़ेंगे। देन मूव फॉरवर्ड टू द नॉइस एंड म्यूजिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक? तो नॉइस वो साउंड हो गई जो हमारे ईयर्स को मतलब अच्छी नहीं लग रही है और म्यूजिक वो हो गया जो हमको अच्छी लग रही है। ठीक है, देन हम आ जाएंगे कि कुछ जो टर्म्स रिलेटेड हैं with sound, that is what do you mean by amplitude। for 3 marks also you have to learn about this कि आप डेफिनेशन लिखनी जरूर आनी चाहिए, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। फिर आप आ जाओगे वेवलेंथ पर। तो वेवलेंथ क्या होती है, इसको सिंबल होता है लैम्डा, उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे और आपको हर डेफिनेशन के बाद एक फिगर बनाना ही पड़ेगा। आप नोट्स में भी बनाओगे तो आपकी एक हैबिट जनरेट हो जाएगी फिगर्स बनाने की, तो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट और ये एक हैबिट बन जाएगी ना तो बाद में टिपिकल नहीं रहेगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो हमारा वेवलेंथ है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देन मूव फॉरवर्ड टू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन पे जैसे ही जाओगे तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना डेली लाइफ। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी आर जस्ट अ हैंडीकैप्ड पर्सन एंड वी आर जस्ट अ टायर्ड पर्सन। ओके गाइस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात होगी तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अगर 3 मार्क्स में होगा तो आप इस डेफिनेशन लिख सकते हो जिसमें आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चार्ज फिर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो चार्ज की डेफिनेशन लिखोगे है ना, फिर आप लिखोगे कि चार्ज जो है 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन हमारा जीरो, नो चार्ज। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा करंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट and what is the unit of current? Unit is ampere। and what type of instrument used to measure current? That is ammeter। ठीक है, फिर करंट पे पढ़ोगे, फिर आप आ जाओगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में आ जाओगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, एंड आप इलेक्ट्रिक सेल भी पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे हाउ द करंट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट भी पूरा पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स, इनकी यूनिट्स, इनके फिगर्स, इनके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स रिलेट करके इनके न्यूमेरिकल्स
ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय मी। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो पूछते हैं कि मैम जब क्लास ले ली तो फिर हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपकी जो की बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। क्लास में भी पूरी एनसीईआरटी कवर कराने का कोशिश की जाएगी, बट फिर भी आपको क्या करना है, जब क्लास ले लो, अपने नोट्स बना लो, देन यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एंड देन क्रॉस चेक ऑल द थिंग्स, और सब चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। देन हम आते हैं जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेट। इफ वी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट वो होती है जो हमारी प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है हमारा मैग्नेट। तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इफ दी ये जो पोल्स हैं ये दोनों डिफरेंट है तो मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, अगर ये सिमिलर पोल्स होते तो ये क्या कर जाते हैं, रिपल कर जाते। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हमारा ये मैग्नेट का लेक्चर आएगा। तो मैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमको इजीली विजिबल नहीं होती, दिखती ही नहीं है, तो हमको यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन विथ यूनिट्स, विथ फिगर्स एंड विद ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कवर्ड इन द क्लास। देन हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड uses of artificial magnet. What is artificial magnet and how can you prepare the artificial magnet, and what are the uses of artificial magnet you have to learn in the class. Then move forward to the light. If we talking about the light, then हमको पढ़ना पड़ेगा वो प्रिज्म का वो डायग्राम जिसपे लाइट पड़ती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है और 7 कलर्स आ जाते हैं विद क्योर। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसकी डेफिनेशन है, इसके ऊपर डिटेलिंग आ सकती है विद फिगर्स एंड ऑल द थिंग्स। फिर विबग्योर के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। फिर जब मिरर्स एंड लेंसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर कैटेगरी आप पढ़ोगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, जिसका आप डेली लाइफ में कहाँ यूजेस रहेंगे ये भी चीज़ पढ़ोगे, तो जिससे क्या चीज़ें जल्दी समझ में आती है। देन आप पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई ऑन रेटिना। तो आप इमेज का फॉर्मेशन पढ़ोगे जहां पर आपको प्रॉपर डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, और जहां पर ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स आएंगे तो जहां पर भी इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ोगे, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है लाइक रेडियस ऑफ कर्चर, फोकल लेंथ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबकी डेफिनेशंस विद फिगर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी जो एक बेसिक नॉलेज है ना वो भी क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगी। देन मूव फॉरवर्ड टू द next topic, that is heat. If we talking about the heat, then this is the important thing, that what do you mean by heat. ठीक है, वो पढ़ोगे आप, किस तरीके से टेम्परेचर मेजर हो रहा है, किस तरीके थर्मोमीटर वर्क कर रहा है, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ थर्मोमीटर, हाउ कैन द थर्मोमीटर वर्क, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जहाँ पर आप दो बॉडीज के बीच में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये चीज़ें आप पढ़ोगे, तो ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम इस चीज़ें से अपने लेक्चर्स जो हैं अपने फर्दर पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आने वाले टाइम्स में पढ़ोगे। आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न, दैट इज यू टू स्टोर इन योर माइंड, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट वाज अ की पॉइंट, दैट कुछ भी टॉपिक हो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, चाहे वो आप थ्योरी पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव हो। न्यूमेरिकल भी कोई आया है, अगर उसकी आपने वैल्यू में लास्ट में यूनिट नहीं लगाई तो आपके मार्क्स कट जाने हैं। देन आपको पढ़ने हैं डायग्राम। देन आप पढ़ोगे एग्जाम्पल, अगर आपके लिए पॉसिबल है डेली लाइफ से रिलेटेड तो आप वहाँ पर अगर वो भी इंसर्ट करते हो। दीज 4 थिंग्स जो है एक गेम चेंजर का भी रोल कर सकती हैं, अगर आप दिमाग में बिल्कुल स्टोर करके और समझ के चीज़ों को पढ़ के प्रैक्टिस करके चलते हो आने वाली क्लासेस में और अपने नोट्स में। आपको इसी तरीके से ये पॉइंट्स को दिमाग में रख के अपने नोट्स बनाने हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, देन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन देन प्लीज सजेस्ट मी ऑन द सेम पेज. Thank you guys. Have a good day ahead and all the best for upcoming exams. And remember the key points of our science and tech portion unit 1 that we are going to start. That is the unit of physics. ठीक है, और ये सोच के चलना है कि 30 में से हमको 28 27 तो लाने ही लाने हैं। इस तरीके से पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन।